Hello students, today we'll discuss question and answer of the fun they had. So let's start. Let's see question number 1. Question 1 is how old are Margie and Tommy? So as you know, Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. Now second question is what did Margie write in her diary? So what she wrote? She wrote in her diary, today Tommy found a real book. Now question third you see, had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने इससे पहले कभी प्रिंटेड बुक देखा था? तो डेफिनेटली आंसर इज नो. What things about the book did she find strange? मार्गी को बुक के बारे में क्या अजीबो गरीब लगा? तो क्या अजीबो गरीब लगा? So she found strange that the words on a page always remain the same. From here you can write it. The words on a page always remain the same at the first time. Now we'll go down. Okay. They were read. Beside the idea that someone would write a book about schools was itself strange for Margie. Okay. Now next question we'll see question number 5. What do you think? इसको हिंदी में एक बार डिस्कस कर लेते कि क्या उसे अजीबो गरीब लगा. तो उसे अजीबो गरीब ये लगा कि जब भी जो उन लोगों ने हमेशा ई बुक से पढ़ा होता है तो ई बुक में हमेशा टेक्स्ट चेंज होते हैं, लेकिन प्रिंटेड बुक में जब भी हम क्या करते हैं कि एक तो टेक्स्ट चेंज नहीं होता और दूसरा क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो स्टिल होते हैं, मीन्स एक जगह चिपके हुए होते हैं, वो स्क्रॉल करने पे या पेज टर्न करने पे वो हिलते नहीं हैं. तो यही उसको बहुत ही स्ट्रेंज लगा. और दूसरी चीज़ की क्या है कि एक बुक स्कूल के बारे में क्यों छपी है, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो छापना या पढ़ना ज़रूरी है. सो दीज ऑल थिंग्स शी फाइंड स्ट्रेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़. सो एज यू नो कि अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड टेली बुक. ठीक है, ई बुक को भी हम टेली बुक कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी क्वेश्चन नंबर 6. Where was Margie's school? So as you know, Margie's school was next to her bedroom. Did she have any classmates? So no, she didn't have any classmates. Now question number 7 you see. What subjects did Margie and Tommy learn? So as you know, they learned geography, history and arithmetic. Now let's switch to next question. This is extract based question. So extract is I wouldn't throw it away. So question 1 you see who says these words. So as you know, Tommy. What does it refer to? So it refers to the television screen, or you can say e-book. What is it being compared with by the speaker? So tally book is compared to the printed books, you can say. Now next extract will see sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. Now who does they refer to? So they refer to the old kind of students who used to go to the old kinds of school. What does regular mean here? So what does regular mean here? So it refers to the mechanical teachers that Tommy and Margie had. Now next question we'll see what is it contrasted with. So the mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier times who was a human being. यानी कि कहने का मतलब है कि मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन बींग्स टीचर में क्या किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है. नाउ लेट्स सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. You have to only answer in 30 words. So question 1 is what kind of teachers did Margie and Tommy have? कि मार्गी और टॉमी के किस तरीके के टीचर्स थे. तो आपको इसका आंसर पता है कि दे हैड मैकेनिकल टीचर्स. सो here you can write कि they had mechanical teachers. First point, they were large. Second point is they were large and black
and ugly and had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. So up to here you can write, this is important. Okay, and after that it is written they had to write the answer in a punch code. So what is punch code? Punch code क्या होता है? ये एक कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है जिसमें बच्चों को आंसर देना होता है. The mechanical teacher calculated the marks immediately. So these all points you can write in point wise. Why did Margie's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? तो क्यों बुलाया था? सो मार्गी हैड बीन गिवन मेनी टेस्ट इन जोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर. अब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो क्या है, उसको टेस्ट पे टेस्ट जोग्राफी सेक्शन का दे रहा होता है, लेकिन मार्गी की परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या हो रही होती है, वर्स हो रही होती है. इसलिए मार्गी की मदर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जो कि मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है, तो इसीलिए उसकी मदर को उन्हें बुलाना पड़ता है. अंडरस्टूड? व्हाट डिड ही डू? अब काउंटी इंस्पेक्टर जब आता है तो वो मैकेनिकल टीचर के साथ क्या करता है? तो जब वो आता है तो क्या करता है, सबसे पहले तो मार्गी को एक एप्पल देता है, और फिर वो जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर होता है उसको एक साइड में ले जाता है, उसको ओपन करता है, उसको फिर से फिक्स कर देता है ना. और उसके जो ज्योग्राफी सेक्शन होता है जो कि थोड़ा सा क्या है, स्पीड में चल रहा होता है, उसको 10 ईयर्स के लेवल की स्टूडेंट के हिसाब से फिक्स कर देता है, और इस तरीके से वो ये सारा काम करता है. ओके. वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? अब ये आंसर तो रिपीटेड है कि वो क्यों बैड परफॉर्मेंस कर रही होती है ज्योग्राफी में. सो मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. क्योंकि जोग्राफी सेक्शन क्या है, थोड़ा सा बहुत फास्ट चल रहा होता है. और व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, तो उसने क्या किया, उसने मार्गी को ब्लेम करने की बजाय उसने बताया कि ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, जो कि 10 ईयर्स के लेवल का नहीं, और इसलिए उसने मिसेस जोन्स जो कि मार्गी की मदर है उनको समझाया, और तब उसने उस सेक्शन को, यानी ज्योग्राफी का जो सेक्टर होता है उसको उसने थोड़ा सा स्पीड कम करके 10 ईयर्स पे फिक्स कर दिया. ओके. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू राइट. What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, तो एक बार जो टॉमी का कंप्यूटर होता है या मैकेनिकल टीचर यू कैन से, उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर होता है वो बहुत क्या हो चुका होता है, पूरा ब्लैंक, यानी कि इरेज हो गया होता है. और तब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को पूरा 1 महीने के लिए लेकर जाता है. क्यों? रिपेयर करने के लिए, यानी कि फिर से फीड करने के लिए. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? सो दिस आंसर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. येस, मार्गी डेली स्कूल पढ़ने जाती थी, यानी कि उसका जो स्कूल होता है वो नेक्स्ट टू उसके बेडरूम के होता है, लेकिन तब पर भी वो क्या है, डेली पढ़ा करती थी. और क्यों? तो इसका आंसर है, जो मेन आंसर वो ये है कि this was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. Okay. और her mechanical teacher was also, और उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेम टाइम पे ऑन हो जाता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे. क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे वीकेंड हुआ करता था. ओके. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी ने कैसे ओल्ड टाइप के जो स्कूल्स थे उनको डिस्क्राइब किया है, तो उसने बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया है, जैसे कि देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. फर्स्ट पॉइंट, दे यूज टू शाउट लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड. सेकेंड पॉइंट, देन दीज ऑल थिंग्स, ये सब क्या है, टॉमी ने, और स्पेशल टाइप का बिल्डिंग होता था, तो ये सारा उसने ओल्ड टाइप के स्कूल को डिस्क्राइब किया. नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, उसने पुराने टाइप के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, जो पहले के स्कूल होते थे, जो टीचर्स होते थे। तो टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया है, तो टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वॉज मैन। सबसे पहले तो वो इंसान हुआ करते थे पुराने टीचर्स, हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वो लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज़ योर सेकंड पॉइंट। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स, और टीचर कभी भी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं पढ़ाता था, वो सबको ग्रुप में पढ़ाता था और सबको एक जैसा होमवर्क देता था और सेम क्वेश्चन पुट अप करता था। ओके, सो लेट्स सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस in 1 to 150 words. So let's start. First question is, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? So ये तो आपको पता है, फिर भी देख लो। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। पहला पॉइंट क्या है कि उनके मैकेनिकल टीचर्स थे। दूसरा है कि उनका फिजिकल फीचर क्या था, तो दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच all the lessons were shown and questions were asked. Second point, they had a slot in which students had to put their homework and test papers. Third point, they had to write their answers in punch code. Fourth point, and the mechanical teacher calculated the marks immediately. Fifth point, so like this point wise write it down your answer. Okay, their schools were in their homes itself. They did not have any classmates. उनके घर में ही स्कूल हुआ करता था, उनके क्लासमेट्स नहीं थे। दे लर्न जोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, इनके सब्जेक्ट्स है जो स्पेशली ये पढ़ा करते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स, वो डेली स्कूल, उनका टाइम टेबल फिक्स था। मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन, और मैकेनिकल टीचर हमेशा टाइम से ऑटोमेटिक होता ऑन हो जाता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्योंकि मार्गी की मदर की थिंकिंग थी कि अगर बच्चे डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्यों वो स्कूल्स को डिसलाइक करती थी। और व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि वो क्यों डिसलाइक करती थी। तो क्यों डिसलाइक करती थी, बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो कि मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन, उसके स्कूल में उतना मज़ा नहीं आता था। क्यों, क्योंकि वो ई स्कूल में जाती थी और ई टीचर से पढ़ती थी। अब मैकेनिकल टीचर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यूज टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स टाइम, उनका टाइमिंग फिक्स होता है। मैकेनिकल टीचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था और एक्सेप्ट सैटरडे संडे। शी हैड बीन डूइंग बैडली इन जोग्राफी, और वो डे बाय डे जोग्राफी में और वर्स करती जाती। क्यों, क्योंकि वो जो उसका कंप्यूटर होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, उसका जोग्राफी का सेक्टर। और उसकी मम्मी का उससे क्या होती है, अनहैप्पी रहती है कि क्यों उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ताकि वो उसके मैकेनिकल टीचर को देख करके बता सके कि क्या गड़बड़ी है। सो ये सारे रीज़न है कि उसे स्कूल क्यों पसंद नहीं था। उसकी कोई क्लासमेट्स नहीं थे, अकेले पढ़ना पड़ता था, बोर हो जाती थी, आंसर क्वेश्चन ये सब पंच कोड में लिखना पड़ता था। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर विल कम अंडर वाई शी डिसलाइक स्कूल। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ कि वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो उसे पुराने स्कूल बहुत ही अच्छे क्यों लगते थे, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ हंसते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बातें करते हुए स्कूल जाते थे। स्कूल के यार्ड में, यानी कि ग्राउंड में, आंगन में एक साथ खेलते थे, सब क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, और टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता था, तो वो आपस में एक दूसरे से क्या है, अपनी हेल्प ले सकते थे, अपनी बातों को शेयर कर सकते थे। सो दीज ऑल पॉइंट्स विल कम इन दिस। दे वुड लर्न द सेम थिंग, सब एक जैसा पढ़ते थे और सब एक दूसरे की होमवर्क करने में हेल्प कर सकते थे। सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है, उसको लगता था कि पुराने स्कूल क्या है और पुराने बच्चे बहुत ही मज़े करते थे। तो डेफिनेटली ये
ट्रुथ भी है. डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ यू कैन राइट योर ओपिनियन, बट लेट्स सी हियर. तो हाँ, हम मार्गी से टोटली एग्री हैं कि जो पुराने स्कूल थे वो ई स्कूल, ई क्लासरूम, ई बुक से मच बेटर है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुराने स्कूल में बच्चे एक साथ एक स्पेशल बिल्डिंग में, जिसको हम स्कूल कहते हैं, वहाँ जाते थे. टीचर एक साथ सारे बच्चों को पढ़ाता था, इंडिविजुअल नहीं पढ़ाता था. इसके अलावा सब बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता था, डिस्कशन करता था, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता था. बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, सब बच्चे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते. सो दीज ऑल पॉइंट्स विल कम. ओके. और जबकि इसके कॉन्ट्ररी क्या है कि इफ़ एनी स्टूडेंट फेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और होमवर्क, जबकि ई क्लासरूम में ई टीचर्स से पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है. जो सारा एक्साइटमेंट है वो सब क्या है, अकेले ही. खुश भी होना है तो अकेले हो, रोना भी तो अकेले रो, है ना. तो ई क्लासरूम में उतना मज़ा नहीं आता है जितना ग्रुप में पढ़ने में मज़ा आता है. ओके. फाइनली द फ्रेंड्स दैट यू मेक एट स्कूल आर मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू विल एवर मेक. सो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या है पीछे के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन क्या है कि मार्गी that schools today are more fun than the schools in the story. तो डेफिनेटली आज के स्कूल्स जो स्टोरी में स्कूल दिया है उससे कहीं ज़्यादा क्या है मज़ेदार है. सो दिस ऑल पॉइंट्स यू कैन राइट. ओके. selected points you have to write, no need to write such a big answer. So short out and write it down. Okay. So till then, bye.